Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive videos for the people who feel they are stuck in their negativity and their own negative thoughts, negative loops. So if you are the one, then my channel is for you. So today I wanted to share what I realized during Durga Puja. I've been meeting many women and उनका एक ही fear है because most of them are not married, they are of my age, and most of them have the same fear. I'll not talk about them, I'll obviously talk about myself because somewhere I also have that fear that they cannot exist in marriage. If they will marry someone or they will go into some family, they cannot exist, they cannot have her rights, they cannot have her own expression, her own voice, she cannot live her truth, that she have to sacrifice a lot, that she have to be giving, nurturing all the time, that she have to be extremely compassionate, taking care of everyone, cooking food, taking care of their parents, of their house, washing clothes, all these she will have to take all these responsibilities, and her own needs will not be seen, will not be respected anymore, and she will not exist. She will lose her voice, her expression. And then I realized that why universe is sending all these women in my life, even though I consider myself as as a confident person, okay, who do not believe in all these things, but still somewhere these conditionings are in my mind also. In back of my mind, I always have been extremely scared of marriage, of marrying someone. I will शेयर वन वियर्ड ड्रीम विद यू जो मुझे 5 साल की एज से आता था. सो 5 साल की एज से मुझे ये ड्रीम आता था कि मेरी फोर्सफुली किसी से शादी कराई जा रही है, एंड वो जो आदमी है जिससे मेरी शादी करा रहे हैं वो बहुत ही बड़े एज का है, लाइक 50-60 ऐसे. अब 5 साल की एज में तो मेरी शादी हुई नहीं होगी किसी से. आई रिमेंबर मे बी नॉट 5-6-7 ईयर्स की मैं होंगी तब से मुझे वो ड्रीम आ रहा है, एंड आई स्टिल गेट दैट ड्रीम. तो फ्रॉम वेयर दिस ड्रीम इज़ कमिंग. मेरी तो शादी किसी से नहीं हुई है. अब 5-6 साल की एज में मैंने किसको देख लिया होगा कि वो मेरी एज की है, लाइक शी इज़ 20 और 15-16, और उसके किसी 50-60-70 के एज वाले इंसान से शादी करा रहे हैं, और वो भी ऐसे कि वहाँ पे जाने के बाद शी विल नॉट कम बैक, लाइक हर फैमिली विल ब्रेक द टाइज विद हर. पहले ऐसे ही होता था ना. देन नाउ आई रियलाइज्ड दिस फियर माइट नॉट बी माइन. शायद ये मेरा खुद का फियर नहीं है. देन आई रियलाइज्ड कि शायद ये मेरे खुद का फियर नहीं है, शायद ये फियर मेरा नहीं है, शायद ये फियर मेरे एंसेस्टर्स से पास डाउन हुआ है, उनकी कंडीशनिंग से, जो लाइफ उन्होंने जी, जैसे वो थे. इफ़ यू गाइज हैव हर्ड अबाउट इंटर जनरेशनल ट्रॉमा एंड ऑल, तो ये ट्रॉमा हमारे एंसेस्टर्स से, जो हमसे पहले रह के गए हैं, इस धरती पे आए हैं, उन्होंने लाइफ जी है, उनसे पास डाउन होता है हमारे मदर के थ्रू, और हमारी मदर को होता है उनके मदर से पास डाउन. ज़रूरी नहीं है कि उनकी मदर ने वो सिमिलर लाइफ जी हो, बट वो मेमोरी उनकी डीएनए में होती है, और वो मेमोरी पास डाउन होती है बच्चे में, जब तक वो हम रिलीज़ ना करें रिकॉग्नाइज करके. सो यू नो आई फील ये जितने भी सारे ट्रॉमास हैं जो उन्होंने जिए, वो कहीं ना कहीं मुझे भी पास डाउन हुए, एंड आई स्टिल हैव दिस डीप फियर कि आई विल बी ट्रैप्ड इन अ मैरिज. इफ़ आई विल मैरी समवन, आई विल बी ट्रैप्ड. I cannot have my own voice. I cannot exist. I will have to sacrifice a lot. I will have to give a lot. I will have to take care of everyone. I'll have to wake up in the morning
and then take a bath, do puja, cook food, feed everyone, take care of their parents and their house, and which is good. Like you will definitely do that with love, if your needs are also met. But if your needs are not met and you are only giving and giving and giving, देन ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा आपको. एंड कहीं ना कहीं आपने अपने मदर्स को भी ऐसे ही करते हुए देखा है, ओवर गिविंग, ओवर सेक्रीफाइसिंग, नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ, फीडिंग एवरी वन, और लास्ट में कुछ थोड़ा सा बच गया वो उन्होंने खा लिया. ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ एवरी वन बट नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ, नॉट हैविंग एनी हेल्दी बाउंड्रीज. हर बाउंड्रीज आर नॉट रिस्पेक्टेड. उन्हें अपनी बाउंड्रीज का खुद ही नहीं पता और उन्हें अपने वॉइस का खुद ही नहीं पता. कहीं ना कहीं दे लॉस्ट देम सेल्व्स इन मैरिज, इन किड्स. आपने कभी भी उनको ऐसे नहीं देखा कि शी इज़ हैविंग बाउंड्रीज, वो ऐसे जी रहे हैं जिसमें उनको बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी है. अगर अच्छी भी है तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ पूरी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए डेडिकेटेड है. Even if she is working only for her family. Maybe she is not doing anything जो उनको सच में अच्छा लगता है, जिनके लिए वो एक्चुअली में पैशनेट है. Maybe they sacrifice their dreams, their voice, their own likes and dislikes. And ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं I तो definitely have this fear and I'm working on it, that I do not want to do this. I do not want to become this type of a woman. I cannot give this much. If I'm not receiving anything in return, I cannot sacrifice so much. And ये जो बचपन से हमें कंडीशन किया जाता है, जो शादी के लिए ही किया जाता है, this fear I've also seen in myself and in women I met. कि उनकी एज हो रही है, नाउ दे विल नॉट लुक ब्यूटिफुल, नाउ दे विल नॉट लुक प्रिटी, एंड उनकी ब्यूटी ढल रही है, एंड दे विल नॉट कंसीव, they will not be good enough as per the standards of the society, that सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स में 28, 30, 32 इज़ ओके. अगर उससे ज़्यादा किसी की कोई रुक रहा है शादी के लिए, तो उसको लोग क्या बोलेंगे कि देखो इसकी एज कितनी ज़्यादा हो रही है, अब तो ये बुढ़ी हो गई, अब तो ये उतनी प्रिटी नहीं लग रही है जितनी ये पहले लगती थी. अब ये कंसीव कैसे करेगी, उसको कौन पसंद करेगा, अब इसकी इतनी ज़्यादा एज हो गई है, देखो लोग क्या बोलेंगे कि इसकी शादी क्यों नहीं हुई, ये शादी क्यों नहीं कर रही, इसने ज़रूर कुछ गलत किया होगा, ये ज़रूर किसी गलत कैरेक्टर की होगी तभी इसकी शादी नहीं हो रही है, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है. मतलब एवरीथिंग कम्स बैक टू द वुमेन कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, देखो इसकी शादी क्यों नहीं हो रही, हो जानी चाहिए थी, इसमें पक्का कोई खोट है, इसमें पक्का कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये शादी नहीं कर रही है, ज़रूर इसने कुछ गलत काम किया है. देखो ये पहले की तरह अब अच्छी नहीं रही, इसको कौन पसंद करेगा. एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच इज़ आई फील एक्सट्रीमली एंग्री कि ये जितनी भी चीज़ें हैं मोस्टली विमेन से ही आती हैं. वी विमेन आर मोर देन मैन क्रिटिकल अबाउट अदर विमेन. And I just don't know like why we do that, why they do that, because of their conditioning, because कहीं ना कहीं उनको ये सबकॉन्शियस रिसेंटमेंट है that she is living her life and मेरी तो कम एज में शादी हुई थी, why she is not getting married. भले कॉन्शियसली वो अवेयर नहीं है बट कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ को लेके जेलसी होगी. So all these conditioning and these fears are coming in me as well, and I've seen in most of the women I've met that she cannot exist in marriage. She cannot have her own voice, which is coming from their own mothers, our own mothers, because we have seen them over giving, over sacrificing, overdoing, not living her dreams, not living her life, not doing what she loved, not wearing what she loved, not eating what she loved, eating after जब सब ने खा लिया और जब बच गया तो थोड़ा सा खा लिया, and not having friends, not going out,
जस्ट लिविंग फॉर देयर फैमिली, देयर किड्स, बस यही लाइफ। तो ये देख के आई ऑलवेज यूज टू थिंक आई नेवर वॉन्ट टू बी लाइक दिस, आई नेवर वॉन्ट टू बी लाइक माई मदर इन दिस वे। आई विल नॉट बी एबल टू ओवर गिव। सेकेंडली, एज अ वुमेन आपके एंगर को ना सोसाइटी में अच्छा नहीं देखा जाता। एज अ वुमेन यू ऑलवेज हैव टू बी सॉफ्ट। अगर आप हमारे टीवी सीरियल्स को भी देखें तो उसमें आई सॉ दिस यूट्यूब वीडियो, अचानक से मेरे स्क्रीन पे आया एंड उसने ये बात बोली कि हमारे सीरियल्स में कैसे प्लॉट्स होते हैं कि एक दुखियारी होगी या जिसके पेरेंट्स बहुत गरीब होंगे एंड वो बहुत ही सॉफ्ट होगी, सब उसको बहुत प्यार करते होंगे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होगी, उसे गुस्सा नहीं आता होगा, बहुत ही भोली होगी एंड वो एक उसकी एक घर में शादी होगी जहाँ पे उसका पति उतना उससे प्यार नहीं करेगा जितना वो कर रही है। शी विल गिव सो मच, शी विल सेक्रीफाइस सो मच। जितनी भी मेन लीड हीरोइंस होती है हमारी सीरियल्स में, उनको क्या दिखाते हैं, गुस्सा नहीं आ रहा है ज़्यादा, सेक्रीफाइस कर रही हैं, वही पहन रही हैं जो उनकी सास उन्हें कह रही है, वही खा रही हैं जो वो उन्हें बोल रही हैं एंड वो बिल्कुल वैसे हो गई जैसे उनकी फैमिली चाहती थी उसको होने के लिए। एंड शी इज़ नॉट लिविंग हर ड्रीम्स, गिविंग अप, बीइंग सॉफ्ट, not expressing her anger. If she is angry then she is not a good woman. तो हमारी सोसाइटी में कंडीशन ही ऐसे किया जा रहा है विमेन को कि विमेन मीन्स ओवरली बीइंग कंपैशनेट, ओवर गिविंग, सैक्रिफाइसिंग हर नीड्स, बीइंग सॉफ्ट ऑल द टाइम। सॉफ्ट एज इन कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए, विमेन को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। एंड विमेन हु आर श्योर अबाउट देमसेल्व्स, who know her boundaries, who know her truth, who knows that what she wants and उसको क्या नहीं चाहिए, and who wants to live her life, who wants to pursue her dreams, okay, and who are strong as in they have a strong sense of self, they have a high self esteem, कि वो किसी भी गलत चीज़ के लिए वॉइस उठाती है, उसमें इंगेज नहीं करती है और उसे गुस्सा भी आता है, वो अपनी बात भी रखती है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। ऐसी विमेन को हमारे फैमिली में भी या फिर हमारे सोसाइटी में भी जो रेबेल होती है उसे कैसे देखते हैं, ओ शी इज़ नॉट गुड, ये अच्छी नहीं है, कैसे रेबेल है, कितना लोगों का रिस्पेक्ट करती। अगर भले ही वो गलत चीज़ के लिए बोल रही हो लेकिन उसको क्या बोलेंगे, डिसरिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि वो गलत चीज़ नहीं सुन रही है। वो गलत चीज़ के लिए अगर आवाज़ उठा रही है, बोल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल है, रिस्पेक्टफुल नहीं है। देखो कैसे नहीं सह रही है, इसको सहना चाहिए, क्यों नहीं सह रही है, क्यों इतना बोल रही है, क्यों चुप नहीं रह रही है। कोई अगर उसे कुछ गलत बोल रहा है तो क्यों क्यों सुन के चुप नहीं रह रही है। बड़े अगर उसको गलत बोलें तो चुप रहे, उनका रिस्पेक्ट करे, इवन दो बड़े आर नॉट रिस्पेक्टिंग हर बट शी हैव टू। अगर वो बड़ों की गलत बात पे कुछ बोल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, रेबल है, डिसरिस्पेक्टफुल है। देखो कैसे जबान चला रही है, जबान लड़ा रही है। People lack self-reflection, and then women who are like that, they don't want them in the society, in their own families. They treat her like a outsider, like an outsider. That's what I have seen and experienced, that women who are strong, उनको ऐसे ही देखा जाता है, ठीक है, सोसाइटी में उनको ऐसे देखा जाएगा बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे साइकी में विमेन को कैसे देखा जाता है, ओह शी विल ऑलवेज नीड हेल्प, शी ऑलवेज नीड हेल्प, एंड उसको हमेशा किसी के ऊपर लीन ऑन होना पड़ेगा, ओके, विच इज़ गुड इफ़ यू वॉन्ट टू डू दैट बाय योर चॉइस, and if you are with the partner who respect you and respect what you brings to the table, even if you are not working, किड्स को रेस करना, घर पे रहना, एंड ये भी कोई छोटी बात नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है, ओके, बट अ पार्टनर हु रिस्पेक्ट्स दैट, हु वैल्यूज़ दैट, उसके लिए आपको खुद को वैल्यू ज़रूर करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल ऑलवेज रिस्पेक्ट समवन इफ़ यू विल नॉट हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज अपने साथ,
तो आप हमेशा ऐसे लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. ओके, so where I was. So what I have experienced that women who have voice, who are strong, who are independent, and who wants to pursue her dreams, who get angry, who express her anger. Okay, she is angry, she is rebel, she is soft, and she have power, she have voice, she is full of herself. ऐसी women को characterless देखा जाता है सोसाइटी में, हमारी फैमिलीज़ में भी, कि ये कैरेक्टरलेस है क्योंकि ये वैसे जी रही है जैसे इसको पसंद है. ओके, एंड शी हैव अ वॉइस, शी इज़ कॉन्फिडेंट. ओके, शी इज़ श्योर ऑफ हर सेल्फ. ओके, शी हैव हाई सेल्फ इस्टीम एंड शी नोज़ व्हाट शी वांट्स. उसको कैसे देखते हैं, मेनली मैन भी उसको कैसे देखेंगे, इसको तो मैं बचा ही नहीं पाऊँगा. बट बिकॉज मैन की साइकी में कहीं ना कहीं, नॉट एवरी मैन बट मोस्ट ऑफ द मैन हैव दिस इन देयर साइकी दैट कि उन्हें विमेन को बचाना है. किस चीज़ से बचाना है? वी आर नॉट वीक. ओके, एंड आई एम टेलिंग दिस टू विमेन एज वेल. यू आर नॉट वीक. आपको कोई अपनी लाइफ में नहीं चाहिए जो आपको बचाए किसी चीज़ से. अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं जो आप खुद को बचा सकते हो. ओके, एंड मेन हु थिंक्स कि उन्हें विमेन को बचाना है और उनके सामने कोई ऐसी विमेन खड़ी होती है जो सेल्फ अश्योर्ड है, उन्हें उसको देख के ट्रिगर फील होता है कि शी, एंड कहीं ना कहीं वो उसकी लाइट को डिम करना चाहते हैं, उसे इग्नोर करके, उसको लेट डाउन करके, उसके बारे में गलत बात करके, उसको छोटा दिखा के, उसको नीचा दिखा के, उसकी बेइज्जती करके, उसको गलत चीज़ें बोल के, उसके बारे में गलत र्यूमर्स फैला के. तो दीज मैन आर वीक. ओके, जो चाहते हैं कि विमेन पूरा सबमिट कर दे. सबमिसिव विमेन जो चाहते हैं कि विमेन शुड बी सबमिसिव, कि उनका जन्म सिर्फ हमारे लिए हुआ है, हमारे मनोरंजन के लिए हुआ है, हमारे किड्स को रेज़ करने के लिए हुआ है, हमारे लिए खाना बनाने के लिए हुआ है, हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए हुआ है, हमारे घर में झाड़ू पोछा करने के लिए हुआ है. दिस इज़ रॉन्ग. एंड विमेन हु नो दैट, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, उनको ऐसे देखा जाता है कि कैरेक्टरलेस है, इसकी सोसाइटी में कोई जगह नहीं है, इसको तो कोई घर अपनाएगा नहीं, इससे तो कोई भी शादी नहीं करेगा क्योंकि वो सबमिसिव नहीं है. और अगर वो सबमिसिव नहीं है, वो पीपल प्लीज़र नहीं है, एंड वो गलत के लिए आवाज़ उठाती है, तो मोस्ट ऑफ us in our families, in our society, we don't accept her. We see her as उसको ऐसे फील कराया जाता है कि she is not acceptable, she is too much. उसका गुस्सा अच्छा नहीं है. एक तो विमेन के गुस्से को बहुत ही शेम किया जाता है. We as a society make her feel, सोसाइटी में उसको ऐसा फील कराया जाता है कि ये गुस्से वाली है तो अच्छी नहीं है, इसका गुस्सा इज़ नॉट गुड. विमेन को तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए. विमेन गुस्सा मतलब शी इज़ नॉट अ विमेन. सो अगर हम अपनी गॉडेसेस को देखें, हम 9 गॉडेसेस की पूजा करते हैं ना नवरात्रि में. क्या गॉडेस बहुत सॉफ्ट हैं? वो पीपल प्लीज़ करती हैं? क्या वो अपनी बात नहीं रखती? क्या उनका अपना कोई वॉइस नहीं है? उनके अपने कोई ड्रीम्स नहीं हैं? क्या शादी के बाद माँ पार्वती ने अपना पूरा लाइफ शिवजी को डेडिकेट कर दिया? उनका अपना कोई वॉइस नहीं था, अपना कोई अस्तित्व नहीं था. जब गॉडेस की 9 फॉर्म्स हैं, जिसमें काली भी एक फॉर्म है, जिसमें शी इज़ फियर्स. ओके, शी एक्सप्रेसेस हर एंगर फ्रीली, एंड वो सारे इल्यूजन को ब्रेक करती हैं. शी कट थ्रू ऑल द इल्यूजन्स दैट वी होल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग. एंड जब वो डीमंस को मार रही हैं तो वो सॉफ्ट नहीं है. ओके, शी इज़ फियर्स. तो वो सारे 9 गॉडेसेस के रूप हम में भी तो हैं.
तो हमारे एंगर को हम इतना शेम क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ आर कंडीशनिंग व्हाट वी हैव सीन इन आवर ओन फैमिली एंड ओन सोसाइटी एंड सराउंडिंग्स, उसकी वजह से हम अपने एंगर को खुल खुल के शो नहीं कर पाते। और अगर हम किसी गलत चीज़ के लिए एंग्री हो रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं उस एंगर को, तो लोगों से पहले हमें बुरा लगता है। वी स्टार्ट टू फील गिल्टी कि यार मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था, मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ बहुत बड़ा गलत काम कर दिया अपने, क्योंकि मैं गुस्सा हो गई। एंड गुस्सा सिर्फ आदमी ही हो सकते हैं, उन्हीं का काम है कि वो सिर्फ गुस्सा होंगे, हम नहीं हो सकते गुस्सा, हम में गुस्सा नहीं हो सकता, हमें बस सॉफ्ट रहना पड़ेगा, विच इज़ रॉन्ग। इन 9 days में जब हम दुर्गा पूजा करते हैं, हम क्या सीखते हैं कि गॉडेस के भी 9 रूप हैं एंड वो सारे रूप हम सब में हैं, ट्रस्ट मी, आप सब में हैं। तो हम अपने गुस्से को क्यों दबाएं? क्यों हम अपने गुस्से को गलत देखें? गुस्सा तभी है ना कि कुछ गलत हुआ होगा, उसी की वजह से गुस्सा है, अदरवाइज तो गुस्सा नहीं होगा ना। एंड स्पिरिचुअल होने का मतलब ये भी तो नहीं है कि आप में गुस्सा ही नहीं होगा। जब हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जाते हैं ना, तो सबसे पहले जो इमोशन ट्रिगर होता है वो रेज ही होता है। और रेज के नीचे आप देखोगे तो उस रेज के नीचे आपको दिखेगा कि वो उस रेज के नीचे की वजह आपको दिखेगी। यू विल फील शेम, गिल्ट, सप्रेशन, ऑल दोज इमोशन, जिसका प्राइमरी ऊपर आपको सिर्फ रेज फील हो रहा है। तो एज अ विमेन we can be all the 9 forms of goddess and we are, हमको सिर्फ उसे चैनल करना है, वो हम में ऑलरेडी है। वी आर शक्ति, वी आर काली, ज़्यादा गॉडेस का नाम मुझे पता नहीं है एक्चुअली। वी हैव सरस्वती, लक्ष्मी, सब हम में ही है। तो हम वो सारे फॉर्म्स को रिवील करने में, एक्सेप्ट करने में शेम फील क्यों करें? We can be crazy, we can be powerful, we can be fierce. Okay? वो हम सब में है वो फॉर्म, तो हम उसे embrace क्यों ना करें? अगर किसी गलत के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं तो हम काली हैं, अगर हम अपनी शक्ति को embrace कर रहे हैं तो हम शक्ति हैं। We recognize the शक्ति within, because Goddess is living through us, we are the vessels, and Goddess is living through you, and you also have all the forms of Goddess within you. You just have to channel it, and the moment you will start to channel it, ऐसा हो सकता है कि आपको रिजेक्शन मिले सोसाइटी में, बिकॉज ये हमारी कंडीशनिंग है सोसाइटी की एज अ वुमेन, विच आई हैव been feeling, and I've been feeling sad and extremely sad and emotional. Still today I also feel, that's why I'm shooting this, extremely angry कि क्यों मैं अपनी वॉइस को नहीं रख सकती, क्यों मैं बन के नहीं रह सकती, क्यों अगर मैं अपने ड्रीम्स को चूज़ करती हूँ, अपनी वॉइस को चूज़ करती हूँ, अपनी सेपरेट लाइफ चूज़ करती हूँ, एक्सप्रेशन चूज़ करती हूँ, मुझे शादी इस एज में नहीं करनी, क्यों मुझे इतना रिजेक्शन मिल रहा है? द एंगर आई फेल्ट एंड आई एम स्टिल फीलिंग, वाई पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग मी, people who are in my surroundings are not accepting me, not respecting me, not valuing me for this. She have her own voice, her own life, her own dreams, that उसको बस किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बहू या फिर किसी की घर की पत्नी बन के नहीं रहना, वो कुछ और भी बनना चाहती है, उसके कुछ और भी ड्रीम है, वो खुद को एक्सप्लोर करना चाहती है। ये सारा गुस्सा ना आई स्टार्टेड टू फील टुडे कि वाई एज अ वुमेन वी आर रिजेक्टेड सो मच, एंड आई हैव बीन रिजेक्टेड सो मच, एंड ये सारी कंडीशनिंग, द मोमेंट आई हैव दिस फियर दैट आई एम एजिंग, आई एम जस्ट 29 एंड आई हैव दिस एक्सट्रीम फियर कि मैं तो बुढ़ी हो रही हूँ। You see, 29 की एज में मुझे लग रहा है कि मैं बुढ़ी हो रही हूँ, मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। कहाँ से आ रहा है ये फियर? कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी से आ रहा है, जो बोलता है कि 24 इज़ द बेस्ट एज टू मैरी फॉर अ वुमेन एंड 26, 28 इज़ द बेस्ट एज टू मैरी फॉर अ मैन। हमें उस एज में खुद ही नहीं पता कि हमें क्या करना है, हमें नहीं पता कि हम कौन है।
और हम उस एज में शादी कर लें। चलो अगर आपने कर भी ली, बिकॉज देयर इज़ नो गुड एंड बैड एज, बट मोस्ट ऑफ अस वी डोंट नो, वी स्टिल आर एक्सप्लोरिंग कि हमें क्या चाहिए, हमारे नीड्स क्या है, मुझे क्या चाहिए लाइफ में। And I have all these fear which I will share with you all, that I am aging, I will not be pretty enough, I'll not be able to marry in a good family because I'm aging, no men will like me, and um, yeah, all these fears. And because I'm so sure of myself, what I want, what I don't want, I have strong boundaries, and I will not work 24/7 in their house like a maid, and I will not take care of everyone like a maid in their family, and I'm not going to take care like a maid of my husband. So nobody is gonna like me because I have my own dreams, my own self, and my own boundaries, my own voice. So I just cannot exist. Nobody is gonna like me and nobody is gonna marry me. All these fears are coming out, which are limiting beliefs. And the moment you will, come on this journey on self exploration, you will feel all these fears, because I'm also feeling it. If you are also conditioned for all these things and you have seen all these things in your surroundings, you will feel all these fears which I am feeling. And I totally understand it is not easy, but allow yourself to feel this rage. Don't hold back your rage, your anger. It is there for a reason. Your Kali is coming through you to cut through all the illusions which you thought you are, but you are not. Okay? And these conditioning that we have as a women is actually very painful in our society. Society tells you whatever rules we have made, अगर आप उस रूल्स के हिसाब से नहीं चलते हैं, we are not gonna accept you, we are not gonna praise you, we are not gonna respect you, which is so bad. And today I feel extremely angry towards the society. Why they have to be like this? Why they just cannot be flexible? Why they teach us all these things? You know? And in the end, I'll just tell you all, lovely women, that release all these limiting beliefs. I know it is not gonna be easy, it is not easy at all. But sit with yourself, release all these limiting beliefs, allow yourself to feel the pain, the rage, the sadness, everything. Don't hold back yourself from feeling any kind of negative emotions, that so called negative emotions जो हम बोलते हैं, उसको फील करने से अपने आप को मत रोकिए. Okay? Allow yourself to feel all the fears and then ask yourself, कहाँ से आया है ये fear? And then start surrendering all these fears to whatever form you believe in. Like I believe in Ma Kali and Bhairav Baba. So I keep on surrendering all my fears to them, that Ma, I'm surrendering my fears to you. I don't know from where all these fears are coming, but I'm extremely angry. I'm extremely angry at the society, at the people around me, and my own self. I'm surrendering it to you all. You tell me what to do with this. You do whatever you want to do with this. And the voice I hear inside my heart, she tells me, just allow yourself to feel it. Don't resist it. It is there for a reason. It will pass. You will heal from it. And trust me, you will also. Just allow yourself to bring all the limiting beliefs you have subconsciously in your mind. When you meet a woman and they project any limiting beliefs onto you, even if they are sharing about their own limiting beliefs and pain, listen to her with the presence.
कहीं ना कहीं वो लिमिटिंग बिलीव्स आप में भी हैं. And if you start to feel the same fear, then surrender, acknowledge the fear, and surrender the fear to Devi, to whatever form you believe in, to whatever energy you believe in. Okay? And just allow all the parts, all the self which you are, which society says कि आप नहीं हो सकते, अगर आप ये हो तो आप women नहीं हो, तो आप acceptable नहीं हो. You cannot be too bold, too courageous, angry, sure of yourself, confident, madly in love with yourself, with strong boundaries. Release all these anger, because you don't have to dim yourself to be accepted by any family or anyone or any man. Start valuing yourself. Start valuing each and every part that you hold. Start valuing your hidden parts as well, your ugliest parts as well, which is not ugly, which is just there because you are not recognizing that part. That part wants to tell you something. Okay, that part wants to show you something. Accept that. Don't run away from that. We have been shamed to express our anger, our opinions out loud. You don't have to be stuck there. People will value you. You will eventually, starting में attract नहीं करेंगे आप. You are gonna lose so many people. जिसको आप सोचते थे कि आपके अपने हैं, जैसे ही आप खुद को प्यार करना स्टार्ट करेंगे, यू आर गोना लूज सो मैनी पीपल जो आपके उसी वर्जन को प्यार करते थे, जो सिर्फ सेक्रीफाइस करती थी, अनकंडीशनली देती थी, जिसके पास कोई बाउंड्रीज नहीं थे. पीपल आर गोना से मे बी यू आर मीन, सेल्फिश, नॉट लविंग, अनकट, क्रूल, नॉट काइंड. You are so full of yourself, and those people are going to fall out from your life. Those people will leave, and I know it is not easy, because we feel ki I'll be isolated, I'll be alone, I'll not belong anywhere, I'll not exist, then I'll not have any friends, any family, or nothing. All these fears are going to come, and trust me, I'm on the same journey. You will attract people who are gonna value you the moment you will start valuing yourself. They will value everything about yourself which you value about you. But it is gonna take time. Universe is gonna test you. Do you really value yourself, or you are just pretending to value yourself? Do you really trust that you will attract people who are gonna value you? And trust me, you will. So on this note, I'm gonna close this video here. Release all the limiting beliefs. Release all the beliefs which are stopping you from embracing your full and whole self, from embracing your potential, from being whoever you are, whatever your soul is. Okay? अब पीछे से आज बहुत आवाज़ें आ रही हैं, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती. ओके, एंड आप लोगों को पता है कि अगर मैं इस वॉइस को कैंसिल कर सकती हूँ किसी ऐप के थ्रू, तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड करिए. आई वुड लव टू कैंसिल द बैकग्राउंड नॉइज़, जिसकी वजह से मैं अपना फ़ैन भी नहीं चलाती हूँ, गर्मी में बैठ के शूटिंग करती हूँ मैं, बिकॉज मेरे एसी में से बहुत आवाज़ आती है. ओके, सो आई विल सी यू ऑल गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. इफ़ यू फाइंड माई वीडियोज़ helpful, then do comment, share, subscribe, and do share with your friends and family. Your love means a lot to me. I will see you all guys in my next video. Bye.